لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا وهادينا بالقاسم محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آپ حضرت تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے پوری جگہ خالی پڑے جماعت نماز بعد میں مسجد بھی ہونی ہے. یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ دوسرے لوگ جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور وقت کافی تنگ ہے، اس لیے وہ مجلس ہونے کی وجہ سے عورتوں کی تھوڑا یہ اور تاخیر ہو گئی. اس لیے مختصر وقت میں یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پہ بات کو ختم کر دیا ہے. بس اعلان الہی ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ کی نزدیک اگر دین ہے، دین اسلام ہے تو درود پڑھے محمد میں عرض کر رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے کہ معاملہ ویسے بھی سوچنے کا معاملہ ہے. نہیں، یہاں آدمی اتنا دیتا ہے اتنا پڑھتا ہے، اگر کسی کا ادھار نہیں چھوڑتا ہے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ میرا آپ کے من میں جو پچھلی منزل میں کر رہا تھا، بہت پہلے کتاب سے پڑھا تھا، اچھی ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتی، ایک طرف سے پڑھا جائے تو شاید ملے. ایک شخص ایک مچھلی پکڑ کے کیا ہوتا ہے وہ کیا ہے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میں بولنے والے انسان. ایک شخص ایک مچھلی لے کے آیا، مچھلی حلال بھی لے کے آتا ہے اپنے گھر پکانے کے لیے. اپنی بیوی کو دیا کہا کہ اس کو صاف واف کر کے پکاؤ اور ہم ابھی تھوڑا ضرورت سے فارغ ہو کے کھلا رہے ہیں. وہ پکانے کے لیے بیوی نے اس کو صاف واف کرنا شروع کیا. صاف کرنے کے بعد اس کو پتیلی کڑھائی اس میں اوپر چڑھا دیا، آگ روشن کر دی. مگر مچھلی ہے کہ وہ گلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. وہ جب کھول کے دیکھ رہی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ جیسے رکھی تھی ویسے ہی رکھی ہے مچھلی. پورے گھر کی لکڑی ختم ہو گئی. گھنٹوں 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیت گئے. اس کا جب واپس آیا مچھلی پک گئی. کہا معلوم ہے کہ کیسی مچھلی لے کے آئے تھے کہ گھر کی ساری لکڑی تو ختم ہو چکی ہے، مچھلی کا ذرہ برابر اثر بھی نہیں ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مچھلی پہ ذرہ برابر اس آگ کا اثر بھی نہیں ہوا ہے. اب یہ لائٹ والے انتظام کر رہے ہیں لکڑی کا، پھر تھوڑا بہت چلو تھوڑا لگا دیں گل جائے شاید یہ پک جائے. جب باجد آ گئے پھر سوچا آخر وجہ کیا ہے. اسی پہ گیس کی آگ سے آواز آئی. کہا کس مچھلی کو پکانے پہ تلے ہو؟ یہ وہ مچھلی ہے جب عاشور محرم میں چاند نمودار ہوتا تھا تو یہ سمندر کی ساری مچھلیوں کو بلایا کرتی تھی اور بلا کے غم مجلس حسین برپا کرتی تھی اور مظلوم کربلا کے غم میں تمام مچھلیوں کو اکٹھا کر کے یہ مظلوم زہرا کے لال پہ گریا کرتی تھی. اس پہ تمہارے گھر کی نہیں، اگر پوری دنیا کی لکڑی اور آگ ختم ہو جائے گی مگر اس کا ذرہ برابر بال بیوی کا نوتا کر تم پکانے پہ تلے ہو. گرامی جب ایک مچھلی غم حسین میں تھوڑی کوشش کر لے تو دنیا کی آگ کے اوپر اثر نہ کرے. اگر مظلوم کربلا کے چاہنے والے یا حسین کہہ کے گریا کرے تو جہنم کی آگ ان کے اوپر کیا اثر کرے گی؟ ایک چھوٹ پڑے محبت والے واقعات کیوں درد ہیں؟ اسی لیے رسول العالمین نے فرمایا ہے جو میرے وال حسین سے روئے گا
या रुलाएगा या रोने की सूरत बनाएगा, उस पर जन्नत वाजिब है। और रह गई अल्लाह अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है। अहले बैत का दामन बहुत अरवाला पर मैंने आपसे गुजारिश किया था कि आप न माने कि हमारा ये काम होगा तो हम ये करेंगे। मामला तो हमारे भाई कोई आदमी कहे नजर न्याज का, क्योंकि मैंने आपको नजर किया ना कि इंसान के हैसियत से जितनी ज़्यादा हो सके वो अपने महबूब के खिदमत में। आदमी किसी से मोहब्बत करता है, ये आदमी किसी के ताल्लुकात है, आदमी जब जाता है कोई बम्बई में है तो पता चला भाई आ रहे हैं तो जा रहे हैं मौलाना जी जैसे जाना उसको दे देना, भाई ये पसंद है उनको। या कोई यहाँ जा रहा है, मैंने देखा भाई वो खुला साहब जो बाहर है, मैंने कहा ठीक है यार जा रहे हैं कोई भाईवान लखनऊ रहते हैं उनको नहीं मिलती, ये 4 बालियाँ लेते जाना। ये क्या है? मोहब्बत की अलामत है। और यही वजह है कि चाहने वाले हर दौर में अइम्मा के खिदमत में हदिया और नजराने पेश करते रहे। ऐसा नहीं है कि अब हम इस वक्त इमाम गायब है तो जाहिर बात हमारे पास एक ही जरिया है कि जिस जरिए से हम उनके तक अपने नजराने को भेज सकते हैं। और जब भेजते हैं तो क्या वो मुझे खाली हाथ वापस कर देते हैं? क्या हम उनको भेजते हैं? आले मोहम्मद हमें बदले देते हैं, देना नहीं जानते। शकी के बलखी बस वाक़या सुनिए, बात को खत्म कर दूं। चौथे इमाम का वाक़या, एक शख्स बस कर रहने वाला आया और हर साल आता था हज करने के लिए, आता था और इमाम की ज़ियारत करने मदीने आ जाता था। और जब आता था तो कोई ना कोई तोहफा लेके आता था। और जब तोहफा लेके आता था, एक साल जब चलने लगा, यकीन ऐसा होना चाहिए, अल्लाह ने नामी मार्फत ऐसी होनी चाहिए। एक साल जब चलने लगा तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम हर साल जाते हो, ये तोहफे ले जाते हो, और आखिर आज तक तुमको तुम्हारे इमाम ने भी कुछ दिया जिनके लिए ले जाते हो? इसने मुँह पे हाथ रख दिया, कहा देखो जो तुम ये मत कहो, जो तुम यहाँ कह रहे हो मेरा इमाम मदीने में सुन रहा हो। जो तुम कह रहे हो आप सोचिए, हम गुनहगार इंसान, मसलन हम वो मिसाल है कि कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमारा कोई बुजुर्ग बैठा हो, बात इंसाफ से बताइए, उसके एहतराम में हम निकले गुजर से, या कोई और चीज़ खाने पीने की है वो मैं खा पी रहा हूँ और मेरा कोई बुजुर्ग आ गया जो मुझे मुझसे बड़ा है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, अब उसके सामने मुझे बीड़ी पी सकता हूँ? एहतराम यही तो है कि उसके सामने, जबकि ये बुरी आदत है, मगर उसके सामने या तो करते हैं कि नहीं पी पाएंगे। और हमको इस बात का यकीन है कि हमारा इमाम जिंदा है, गायब है, हमको देख रहा है। कोई गुनाह करने से पहले हमने कभी ये एहसास किया कि मेरा इमाम हमें देख भी रहा है? जिस दिन से एहसास पैदा हो जाएगा, मालूम नहीं कितने गुनाहों से पूछा छूट जाएगा। एक दूर पर है मोहम्मद वाले मोहम्मद जमीर बेदार हो जाएगा, जिस इमाम के हमको मार्फत हो जाएगी। इसीलिए मैंने शुरू की मजलिस में अर्ज किया था, अगर मजलिसों से किरदार के अंदर कुछ तब्दीली आ रही है तो समझ लीजिए आप मजलूम करबला का गम भी मना रहे हैं और अहले बैत के फज़ाइल भी सुन रहे हैं, उनकी सीरत पे अमल भी कर रहे हैं। अगर तब्दीली नहीं आ रही है तो यूँ समझ लीजिए आप अपने आबा व अजदाद की कायम की हुई रस्म पे अमल कर रहे हैं। जिस तरह एक नमाज होती है, एक आदत होती है, एक नमाज मार्फत के साथ होती है, एक नमाज आदत के साथ होती है, इसी तरह मजलिस हुसैन है, एक मजलिस मार्फत के साथ होती है, एक मजलिस आदत के हिसाब से होती है। अगर नमाज पढ़ने के बाद सीधा सीधा कोई आमाल शरीयत जो भी अल्लाह ने हुक्म दिया उसका अंजाम, चाहे नमाज हो चाहे रोज़ा हो, जो भी एहकाम है, अगर इनके करने के बाद गुनाहों में कमी आ रही है तो इसका मतलब है इबादत कबूल हो रही है। अगर गुनाह बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब है भूखे रह रहे हैं और टक्कर मार रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर अदादारी के बाद हमारे किरदार में बदलाव आ रहा है तो समझिए हम मजलूम करबला को मक्के मकसद को कामयाब कर रहे हैं। वरना अगर किरदार में उससे ज्यादा मर्तबी आ रही है तो समझिए कि हम मुहर्रम को बस जो मैंने काल की खिदमत बयान किया था एक त्योहार मना रहे हैं, जहरा के लाल का गम नहीं बना रहे हैं। दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सुन लीजिए, ये बातें कड़वी है, हर आदमी कहने की है, हिम्मत नहीं रखता है, क्योंकि मामला लिफाफे पे आ जाता है कि मोमिन बुलाएंगे नहीं, हम तो इस चीज का डर भी नहीं है। दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद
जहां मेरा इमाम चाहेगा लिखा है वहां मुझसे पढ़वा देगा, और जहां नहीं लिखा है मैं चाह के भी नहीं पढ़ पाऊंगा। सीधी सी बात है। ये तो ड्यूटी ऊपर से लगाई जाती है, यहाँ आप नहीं सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ड्यूटी ऊपर से लगाई जाती है। और अज़ीज़ान गिरामी, हक बोलने का मामला यह है कि बोलते रहना जरूरी इसलिए है कि गदीर खून के मैदान में जब हुस्मान इब्न साबित ने कसीदा पढ़ा था तो रहमतुल लिल आलमीन ने कहा था, वो पूरी तफसील से किसी दिन अर्ज कर दूंगा क्योंकि मामला बहुत लंबा है। इतना ही कहा था कि ये हुस्मान, जब तक तुम्हारी जबान हम अहले बैत की मदहत में मिदहत में चलती रहेगी तब तक रूहुल कुद्स से मदद होती रहेगी। यानी मतलब यह वक्त पढ़ने के लिए इंसान कुछ आता है, पढ़वा उससे कुछ लिया जाता है। पढ़ता आके कुछ है, यानी गैर से इमदाद होती रहती है। मगर जाने का वो क्या हुआ क्या उनका बाद में वो सारी पूरी अलग एक पूरा वाक़या है। मगर जाने में शहीद के बाद की चलने लगा तो क्या हुआ नतीजा, कहा कि तुमने गलत कह दिया, मेरा इमाम इस बात को सुन रहा होगा और तुमने कह दिया। अरे इमाम वो तो वारिसे कायनात और मालिके कायनात हैं। अरे गर्रे पे वो क्या, उनसे क्या कहेंगे, हमारे ये नजराना उनके लिए हकीकत और हैसियत क्या रखता है जो मैं देता हूँ। ये तो मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ। जाके चला गया, हज करने के बाद मदीने आ गया। बस यही वाक्य छोटा सा आज करके बात को खत्म कर। मदीने आ गया और जब मदीने पहुंचा तो इमाम की खिदमत में पहुंचा। इमाम ने बुलाया, बिठा दिया। बिठाने के बाद गुलाम को आवाज़ दिया, खाना चुन दिया जाए। दस्तरखान लग गया, दस्तरखान लग गया। खाना इमाम ने कहा कि आप खाना नोश कर लो। तो इमाम का हुक्म है, थोड़ा सा इम्कान। इमाम ने कहा नहीं, आप खाना खाते जाओ, खाना खाते जाओ। अब इमाम का हुक्म था, इमाम को जिसको किसको नसीब होगा, कुछ किस्मत होगा। जो आज जहाँ फरिश्ते भीख मांग रहे हैं वो इमाम खुद कह रहा हो मैं टिका लो। उस दस्तरखान पे खाने लगा। खाने के बाद उठा, गुलाम तश्त हाथ देते पहले चलता था हाथ धोने के लिए, आफ्ताबे में पानी लेके आया और तश्त लेके आया। इमाम ने कहा हाथ धुलाने के लिए, तो उसने कहा मौला अभी इतनी जसारत, ये मुमकिन नहीं, आप हाथ धुलिए, मैं हाथ धुला रहा हूँ। अब वही फकीर बन के हाथ धुला रहा है और हाथ धुलाते जैसे हाथ धुलाया और पानी तश्त में गिरा तो भाई क्या है, क्या देख रहे हो, क्या है? कहा बोला पानी है। कहा नहीं, ज़मरूदे सुर्ख है, शब्द है, ज़मरूदे शब्द है। अब जब देखा तो उसमें ज़मरूदे शब्द नजर आ रहे हैं। फिर उसने पानी डाला हाथ पे और जब फिर हमने हाथ में थोड़ा सा और भरा, इमाम ने फरमाया अब क्या है? कहा बोला पानी है। कहा नहीं देख, जो नहीं अब्दुल है नहीं सफ़ेद मोती है। अब जब सफ़ेद देखा तो सफ़ेद मोती थे। अज़ीज़ान गिरामी, ये मालिके कायनात हैं, ये आलिमे कायनात हैं, इनको अल्लाह ने इल्म किताब अता किया है। ये सिद्दीक़ अकबर हैं, जो कह देंगे वही होगा। एक झूठ पढ़े मोहम्मद कहेंगे वही होगा। उसके बाद फिर पानी डाला उसने, फिर हाथ धुला और जब फिर थोड़ा पानी गिरा तो कहा कि अब तश्त फुल हो गया। कहा कि अब ये क्या है? कहा पानी। कहा नहीं, याकूत सुर्ख है। जब देखा तो याकूत सुर्ख है। पलट दिया, उसके बैग थैला तो दौड़ गमछा जो भी अपनी जबान में कह दीजिए, रिदा में उसके डाल दिया कि ले जाओ अपनी बीवी से कह देना माले दुनिया में इससे ज्यादा मेरे पास नहीं था। दूर पढ़े पर मोहम्मद वाले माले दुनिया में इससे ज्यादा नहीं था, ये ले जाके अपनी बीवी को दे देना। अब जब ये समझ लिया, कहा मौला आपको इतना हो गई, देखे दिल में चला कि मेरी बीवी ने कितना गलत कहा था कि आज मेरे इमाम के सामने मुझे मिल तो गया मगर एहसास हो गया कि इमाम को खबर हो गई कि मेरी बीवी इमाम के बारे में क्या ख्याल रखती है। वापस गया, कहा मैं नहीं कहता था कि तुम जो कह रहे हो मेरा मौला सुन रहा है मदीने में, देखो ये दिया है तुमको। जब बीवी ने देखा तो उसकी कैफियत में तब्दीली आई और जब तब्दीली आई अगला साल आया तो कहा कि अब कि तुमको अकेले नहीं जाने दूंगी, अब उस इमाम की ज़ियारत को मैं भी चलूँगी जिस इमाम की ज़ियारत के लिए आप मुसलसल जाया करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मियां शौहर और रोजा हज के लिए आए, फिर मदीने के लिए चले। फिर थोड़ा मदीने से दूर रह गए थे कि अचानक बीवी बीमार हुई और इंतकाल कर गई। और जब इंतकाल कर गई तो बीवी की लाश को छोड़ के
भागता हुआ इमाम की खिदमत में आया। कहा मौला, इमाम बैठे हुए थे इमाम, चौथे इमाम। कहा मौला, हमारी बीवी आ रही थी आपकी ज़ियारत के शौक़ में, और रास्ते में अचानक अलील होकर वो इंतकाल कर गई। कहा कि ये कहाँ चला आया? जा तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही है, अब ये भागता हो जल्दी से। कहा जल्दी जाओ, तुम अपनी बीवी को लेके आओ, तुम्हारी बीवी तो इंतजार कर रही है तेरा। अब ये भागता हुआ या उस मकाम पे जहाँ छोड़ के कहता, देखा इसकी बीवी जिंदा बैठी थी। जब वापस आया इमाम की खिदमत में लेके, जैसे ही बीवी की नज़र पड़ी तो कहा कि वल्लाह यही तो हमारे मौला है। जब मलकुल मौत हमारी रूह कब्ज़ करके लेके चल रहे थे तो यही तो आके कह रहे थे कि मैंने परवरदिगार आलम से इसकी रूह को परवाह किया है, अब इसकी रूह को वापस कर दो। तब मलकुल मौत ने मेरी रूह को छोड़ा है और मैं जिंदा हुई हूँ। अज़ीज़ान गिरामी जब लेके आई तो अब तक के मारिफत इमाम न थी, मगर जब कुछ पा गई तो इमाम की ऐसी मारिफत हो गई कि हमेशा हमेशा के लिए इमाम की सहलाई बन गई। ये झूठ पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। जिन चाहने वालों ने अपनी नजरों से इमाम का मर्तबा ये देखा हो कि ज़हरा के लाल के लिए कहा हो, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, मेरे नवासे हसन हुसैन जवाना ने जन्नत के दरबार में। हाकिम शाम बैठा हुआ गुफ्तगू कर रहा था, कहने लगा ये बताओ इस वक्त अरब में सबसे ज़्यादा मुस्तहक़ खिलाफत कौन है? लोगों ने कहा कि अमीर के अलावा कौन हो सकता है? कहा नहीं, अगर इस वक्त कोई मुस्तहक़ खिलाफत का सबसे ज़्यादा हकदार है वो हुसैन का बेटा अली अकबर है। उसकी रिश्तेदारी लगती थी जनाब उम्मे लैला मैमूना की बेटी, मैमूना सकीब की कबीला सकीब की थी में ब्याही थी, और मैमूना अबू सुफियान की बेटी थी, यानी हाकिम शाम की बहन। ये दूसरे रिश्ते से वो बता रहा था कि शजात बनी हाशिम से, सखावत बनी उमैया से, और हुस्न जमाल कबीले बनी सखीर से अली अकबर को मिला है। इसलिए अली अकबर से ज़्यादा बेहतर इस वक्त, और वो शबीह रसूल भी हैं, और इतना अच्छा उनका ख़ानदान है, इसलिए उनसे ज़्यादा बेहतर है। जब दुश्मन जिसके हुस्न की तारीफ कर रहा हो, उस माँ के दिल के और बाप के दिल पे के नज़रों में उस बेटे की कितनी वो होगी कि अली अकबर को जब इमाम देखते थे और अपना नाने रसूल की ज़ियारत करते थे। अदाकारों को छोटा सा वाक़या कि जब अली अकबर की विलादत हुई तो आप सुनते रहते हैं कि तमाम अरब में शोहरा हो गया। लोग जो ज़ियारत के लिए आते थे, एक सहराई अरब आके कहने लगा, बाकी आवाज़ दिया, मौला हुसैन निकले। कहा मैंने सुना है अल्लाह ने आपको एक बेटा कर दिया जो रसूल से मुशाबे है, मैं ज़ियारत के लिए आया हूँ। आका ने अली अकबर को बुलाया, अली अकबर आए। अली अकबर आने के बाद खड़े हो गए बाबा के बगल में। उसने देखा भी बचपना है, बहुत छोटे हैं, पास में आके खड़े हो गए। कहा यही वो मेरा बेटा है जिसको मैंने नमाज शब में अपने परवरदिगार से मांगा है। कहा मौलवा सर से पैर तक, कभी पैर से सर तक अली अकबर को देखता रहा, फिर हाथों को जगह मौला आप तो इमाम वक्त हैं, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझे भी एक ऐसा बेटा अता कर दे, अल्लाह आपकी दुआ को रद्द न करेगा। कहा नहीं ऐ भाई, कहा अली अकबर घर में वापस चले जाओ। अली अकबर घर में वापस आ गए। कहा भाई इतना बता दे कि अब मैं दुआ कर दूंगा तुझे अल्लाह इतना हसीन और खूबसूरत बेटा अता तो कर देगा, मगर अचानक उसके कहीं पैर के तलवे में अगर कांटा चुभ जाए तो तुझे कैसा महसूस होगा? कहा कि मौला वो कांटा मैं अपने हाथ के जीते में तो चुभना गवारा कर सकता हूँ, मगर इतने हसीन जमील बेटे के पैर के तलवे में वो कांटा गवारा नहीं कर सकता। तो कहा भाई अरब इस बात की तमन्ना न कर, ये मेरा बिलाल वो है जो 3 दिन के भूख प्यास में सीने में लड़ने का पल पा के दुनिया से रुखसत हो जाएगा। यहाँ तक बात पहुँच गई थी, बोलो अली अकबर के सराहने पहुंचे, आवाज दी अम्मा सब चले गए हैं, अम्मा करबला में हुसैन को आप तन्हा न छोड़िएगा। जनाब अली अकबर के सीने से जब बर्छी का पल निकाला, खून का फव्वारा निकला, हुसैन निपट गए। अली अकबर तुमने भी गुर्बत में मेरा साथ छोड़ दिया। और मुश्किल ये है कि हुसैन को तन्हा करबला के मैदान में 18 बरस के जवान का बेटा जाकिरीन पढ़ता है कि हुसैन ने अली अकबर को हाथों में उठाया। हाथों पे किसी बच्चे की मैयत को उठाई जाती है। 18 साल के जवान अली हुसैन ने अली अकबर के बगल में हाथों को डाला, अली अकबर के सीने से अपने सीने पे मिलाया, लेके बूढ़ा बाप जवान
اتنا مشکل وقت کربلا میں جب علی اکبر کی میت کو اٹھا رہے تھے، پھر کوشش کیا، پھر اٹھایا، سینے سے لگایا میت کو، پھر کوئی دور چلے، پھر رکھ دیا۔ ازاداروں جب طاقت نے جواب دیا، دیکھا بچے خیمے کے در پہ کھڑے، آواز دیا بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور علی اکبر کی میت کو اٹھانے میں میری مدد کر دو۔ جزاکم ربکم ازاداروں، بآخری منظر خطبہ کو جناب علی اکبر کی میت کو لے کے مظلوم کربلا بچوں کے سہارے سے، کسی بچے نے ہاتھ میں سہارا دیا، کسی کو اپنے پیر کو سنبھالا، کسی نے کمر میں ہاتھ لگایا، کسی نے سر کو سنبھالا، مظلوم کربلا کے بچے میت کو سہارا دیے ہوئے خیمے میں لے کے آ گئے۔ خیمے میں جب میت آئی تو بیویوں نے گھیر لیا، آواز ام لیلا کہا ہے، علی اکبر کا میدان سے واپس آ گئے۔ ازاداروں، بات یہ کہتے ہیں نظروں کو تمہیں نہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ماں کو جب اطلاع ملی ام لیلا کی نظروں میں دنیا اندھیر ہو گئی، جگہ میں رہنے کے لیے گئی تو روایت نے لکھا کہ جناب ام لیلا پہلے تو نکلنا چاہتی ہے تو کبھی اس طرف ٹکرا جاتی ہے، کبھی اس طرف ٹکرا جاتی ہے، خیمے کا در دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آواز دی، اے بی بی ام لیلا، ارے آئیے آپ کا بیٹا آ گیا۔ ام لیلا نے کہا واپس آپ آ گئے، میں بڑی دیر سے کوشش کر رہی ہوں مگر کیا کروں ابا، مجھے کچھ سجائے نہیں دیتا، میں خیمے سے نکلنا چاہتی ہوں مگر خیمے کا در نظر نہیں آتا۔ وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة